momentous occasion for the cricket fans across the globe. We pay tribute to one of India's most revered cricketers, Rohit Sharma. From the bustling streets of Worli in Bombay to the grandest stages of the world cricket, Rohit's journey has been nothing short of extraordinary. Take a look. From the streets of Bombay's Worli to the most competitive arenas of the cricketing world, this man has done it all. The Indian skipper got a chance to revisit 2007's World Cup glory. After the historic World Cup win, Captain Rohit Sharma has decided to call quits on the shortest format of the game. Let's have a look at the Golden Player's Golden T20I career. Rohit was left in tears after the 2023 ODI World Cup final loss. And now, the hitman hits back in style. Pandya expressed his thoughts on the legendary skipper's T20I stint. 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है. I think very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. You know, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserve this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group. We can give them. He has silenced everyone with his exemplary stint as captain of the stellar side. From hitting 6 after 6 to leading flawlessly, the hitman has given us a plethora of memories. What's unsure is who will lead this T20I legacy next. But one thing that is certain is the nation will miss the skipper. The nation will miss one of the greatest to have ever played this sport. The nation will miss you, hitman. And viewers, as you already would know, India secured their second T20 World Cup title with a win over South Africa, ending a 17-year-long wait. The thrilling victory at Kensington Oval in Barbados was marked by an emotional scene and unforgettable moments across the country. Now, star all-rounder Hardik Pandya was the hero, defending 16 runs with nerves. We are in fact now joined in by my colleagues Amardeep from Jaipur and Gursimran from Jammu. They're both with young cricketers, budding cricketers with them. Let me come across to you first, Amardeep. How really is the mood on the ground with that ecstatic win of India? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की कल विक्ट्री मिली है टीम इंडिया को, ये 17 साल का इंतजार था और उसके बाद जिस तरीके की एक फाइनल मैच का जो क्रेज था वो देखने को भी मिला. मेरे साथ में यंगस्टर क्रिकेटर हैं जो फ्यूचर हैं टीम इंडिया के. क्या सबसे अच्छा मोमेंट कल के मैच का लगा? हमको मतलब अच्छा और टर्निंग मोमेंट एक ही लगा था जब ना हार्दिक पांड्या ने विकेट ली और सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ी. मतलब क्लासन की जो मेन विकेट थी क्योंकि वो बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे. वो लास्ट तक इंतजार कर रहे थे कि लास्ट ओवर में भी आके मार सकते हैं, इसलिए उनको आउट करना जरूरी था. और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हार्दिक पांड्या की लास्ट ओवर. प्रेशर में थे? जी सर, प्रेशर में थे बट उन्होंने निकाल दिया. और सबसे बड़ी चीज थी कि दो प्लेयर टीम इंडिया के, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है. उन्होंने संन्यास लिया है. जैसे उन्हें संन्यास उनका बिल्कुल वो सही था, जो कि खुशी से संन्यास लिया है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीता, इतना अच्छा मौका उन्होंने संन्यास लिया है. बहुत बढ़िया. विराट कोहली ने इतने फॉर्म नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनल में आके फॉर्म आ गई उनकी. बहुत बढ़िया रही. वही टर्निंग पॉइंट था. रन आए विराट कोहली के बल्ले से, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए. लेकिन कल कितनी खुशी हुई, सबसे बताइए कितनी बड़ी खुशी थी कल जब क्या किया सबसे पहले मैच जीतने के बाद? पटाखे फोड़े. मतलब एक बार बताइए कैसा एक्साइटमेंट था लास्ट में? इंडिया वाला बताओ. इंडिया 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 इंडिया
इस तरीके का चेयरअप किया पूरा। तो मतलब रात को कितने बजे सोए? सर रात को 1:45। 1:45 पे सोए। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही थी घर में? तुम्हें हो रही थी कि पापा को? सर सारों को हो रही थी, हमारे सबको हो रही थी। सब जगह हुए थे हम सारे घर के, मतलब मैच देख रहे थे स्क्रीन पे। अनाउंसमेंट किया विराट कोहली ने कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो दिल थोड़ा सा बहुत दुखा था, तो टूटा था दिल पूरा। दिल टूटा था कि मतलब T20 नहीं खेल पाएंगे कि आगे कौन संभाले। बिग हिटर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जब थोड़ा सा लेट किया अनाउंसमेंट। रोहित शर्मा ने लेट किया क्योंकि जब विराट कोहली ने कर दिया तो उन्होंने भी सोचा कि अब कर देना चाहिए क्योंकि इससे बढ़िया चाहिए। लेकिन वनडे में अभी वनडे से दोनों ही प्लेयर का रिटायरमेंट नहीं है। 2027 पर निगाहें हैं अब। 2027 से बिल्कुल नहीं गया है, वो लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है दोनों बल्लेबाजों को, कि दोनों बल्लेबाज लास्ट वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और जीतना भी चाहिए। अच्छा, तो इस बार टीम इंडिया की सबसे बड़ी अगर ताकत की बात करें तो इस पूरे सीजन में क्या रहा? बॉलिंग, बैटिंग? मेरे को तो बॉलिंग लगी। बॉलिंग लगी। आपको क्या लगे? जल्दी बताइए, बैटिंग या बॉलिंग अच्छी लगी? सर बॉलिंग। बॉलिंग। आपका? बॉलिंग। बॉलिंग अच्छी लगी। तो मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छा रहा। और सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी कि टर्निंग पॉइंट मैच में, क्योंकि एक बार लग रहा था जब क्लासन खेल रहे थे कि मैच हाथ से जा चुका है, लेकिन हार्दिक पांड्या आए। पांड्या ने सबसे पहले क्लासन की विकेट लिया, उसके बाद में डेविड मिलर को जिस तरीके से आउट किया, सूर्य ने जिस तरीके से बाउंड्री पे एक वो कैच लिया जो याद दिलाता है 1983 की, जब कपिल देव ने लिया था। 2007 के उस वर्ल्ड कप की बात करें जब मिसबा को पीछे की तरफ श्रीसंत ने कैच पकड़ के जोगिंदर रवाना की कैच पकड़ा था। तो ये तमाम वो मोमेंट रहते हैं जो याद रहते हैं लाइफ टाइम तक, एक इतिहास बनता है, एक मोमेंटम रहता है कि वो कैच जो था वो बिल्कुल अलग था। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ अमरदीप। Let me also go across to Gursimran, viewers who's live from Jammu with young budding cricketers. Gursimran, now both Kohli and Rohit have announced their retirement soon after the victory. Who do you think will be their favorite to take over the baton from, both of them as the anchor, the role that Virat Kohli played, and who do you think they think will be the next captain? See, this is the question, $1 million question probably, as the team is set to see new faces in the T20. Probably the Hardik Pandya seems to be the front runner. Right now we are in Jammu where the cricket is going on. The cricket is, which is an emotion, does not stop. We'll try to speak to some of the cricket fans, what they have to say. कल विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों रिटायर हो गए। अब क्या लगता है नेक्स्ट कैप्टन कौन हो सकता है T20s के लिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या जो है नेक्स्ट कैप्टन बन सकते हैं T20 के हिसाब से, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा खेलते हैं T20 में। अभी पीछे जो वर्ल्ड कप हुआ ICC में, उसमें थोड़ा सा उनका कम योगदान था, और जो इस बार वर्ल्ड कप में उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से खेल के उन्होंने अपनी कप्तानी के लिए मतलब वो किया है कि मैं कैप्टन बन सकता हूँ। कल के मैच में सबसे थ्रिलिंग परफॉर्मेंस और मूवमेंट कौन सा रहा? जब वो अक्षर पटेल ने कैच जो आउट किया है, बस वही थ्रिलिंग था। उसकी वजह से ही तो सारा मैच जो है इंडिया के पक्ष में हुआ। तो लग रहा था बीच में कि मैच निकल जाए? बीच में मैच लग रहा था चला जाता, जब भी 10 से 12 ओवर के बीच में पूरा पता चल रहा था कि ये मैच चला जाएगा, निकल जाएगा। लास्ट के 2-3 ओवर में मैच जो है अपनी तरफ, इंडिया की तरफ आया है। 2-3 ओवर्स में मैच अपनी तरफ आया है। आपको सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा लगा मैच का? सूर्य कुमार का कैच पकड़ना। तब तक क्या लग रहा था? तब तक लग रहा था कि मैच जो है 19-20 है, लेकिन जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कैच पकड़ा गया है, उससे जो है वो भारत की जीत सुनिश्चित हुई। जीत सुनिश्चित होगी। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था मैच का? हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर। क्यों? उसने पहली विकेट ली थी। लग रहा था तो उससे पहले मैच हार जाएंगे। हाँ। So you can understand that everyone here, even they are playing, I'm disturbing them probably. So they are saying that it is the Hardik Pandya's last over that was one of the deciders, and the cricket that continues. Now they are really disappointed with the retirement of both the big players, be it the Virat Kohli or Rohit Sharma. But yes, they see Hardik Pandya as the replacement for the T20s, as he has proven his mettle. Yes. Oh yeah, absolutely. Hardik Pandya really remains the top favorites when it comes to taking over from Sharma as the captain, and in fact with his captaincy record in the IPL as well as the captain of Gujarat Titans. But let me also come across once again to you, Amardeep. How's the really, feel on the ground in Jaipur? People are really talking about India's bowling prowess, how Jasprit Bumrah, in fact, led the bowling attack throughout the tournament, winning each game, and, with his economy rate of 4.17 is one
taken 17 wickets throughout the tournament. What are the people there and the young budding cricketers thinking about the Indian bowling attack? देखिए फर्स्ट टाइम था कि इंडियन बॉलिंग अटैक जो था इस तरीके का मैं खुद देख रहा था और मैं ना सिर्फ बल्कि पूरी हिंदुस्तान में ये था कि हिंदुस्तान की बॉलिंग जो थी सर वो बहुत अलग लेवल की इस टूर्नामेंट में देखने को मिली। सर बॉलिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी बॉलिंग की है सबों ने, बुमराह से लेके बुमराह ने सेकंड लास्ट ओवर थर्ड ओवर जो इन्होंने बहुत अच्छे निकाले जिससे हमारे को जीतने में आसानी हुई सर। अर्शदीप की बात करें हार्दिक पांड्या की, क्योंकि टर्निंग पॉइंट था हार्दिक पांड्या का और अर्शदीप का, और सबसे बड़ी चीज थी कि रोहित शर्मा का वो डिसीजन की एक प्रेशर में जब क्लासन खेल रहे थे 50 मार चुके थे और एक बिग हिटर के तौर पे ग्राउंड में मौजूद थे। हाँ सर ऑब्वियसली बहुत अच्छा बैट्समैन है वो मार्क क्लासन, लेकिन उनको चाहिए था रन ज़्यादा तो इसी में हिट वो नहीं कर पाए और सूर्य कुमार ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने और जो छक्का जा रही थी जो उसको रोक लिया उन्होंने। मिलर उस टाइम पे खेल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अर्शदीप सिंह की बात करते हैं तो अर्शदीप सिंह इंडिया का न्यू स्टार बुमराह के साथ जोड़ीदार। बुमराह शायद जोड़ीदार है पर बुमराह जैसी उसकी तरह बॉलिंग करना उसको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुमराह सीनियर प्लेयर वो जूनियर प्लेयर, बुमराह उससे ज़्यादा मैच खेले, उनको पता है फंसा हुआ मैच कैसे निकाला जाता है। कि फंसे हुए मैच में किस तरीके से विकेट निकालनी है बुमराह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी बुमराह इसी में एक्सपीरियंस प्लेयर है कि उनको पता है कि इनको किस मैच में विकेट निकालनी है, इसलिए शायद कमेंटेटर ने भी बोला था कि उनके पास एक मैजिकल वॉन्ड है जो इंडिया यूज़ कर सकती है विकेट लेने के लिए, जो बुमराह ने बड़ी खूबी से निभाया है। सबसे बड़ी चीज होती है डिसीजन, जब कैप्टन मैदान में होता है, प्रेशर में होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा होता है, उस टाइम डिसीजन कि कौन से प्लेयर को बॉल थमाई जाए, किसको निकाला जाए, क्योंकि 24 रन अक्षर पटेल खा चुके थे। उसके बाद में बुमराह को लेकर के आए, विकेट निकाल के दी बुमराह में। ये कैप्टनसी किस तरीके से डिसीजन? रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के 2 ओवर जो बचे हुए थे उनको जिस तरह से निकाला गया, लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या का वाज वेरी ऑसम, और उसके बाद जब वो अपने ओवर में आए क्लासन को विकेट निकाला वो भी बड़ा अच्छा था। क्लासन का विकेट निकाला, सबसे बड़ी चीज थी कि मिलर उस वक्त खेल रहे थे और अंतिम जो 6 गेंदें थी वो बहुत जिम्मेदारी के साथ हार्दिक पांड्या को करनी थी, लेकिन लग रहा था कि मिलर आउट हो जाएंगे, मैच बनेगा, 1-2 रन टाई हो जाएगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत काम था उस टाइम पे, उसने एक तरह एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से करा था, हालांकि बॉल बहुत स्किड हो गई थी, पर सूर्य कुमार का कैच जो था वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे। मतलब कि वो किसके खाते में आप गिनेंगे, सूर्य कुमार यादव के खाते में या हार्दिक पांड्या के? हार्दिक पांड्या के, बिल्कुल उसने कामनेस के साथ करा, हालांकि सूर्य कुमार यादव का कैच फिनोमिनल था उसके। लेकिन कल जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव, सब बच्चे कह रहे हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट क्या था कल, सब लोग एक बार बता दीजिए क्या था जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद क्या सबने क्या किया? सबसे पहले जीतने के बाद एक्साइटमेंट क्या था? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, तो ये क्या मतलब इंडिया जीत गया? अच्छा, भांगड़ा जो था आप कह रहे थे कि सबसे अच्छा भांगड़ा लगा, तो कल कैसे जब अर्शदीप और विराट कोहली भांगड़ा कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे एक बार बताएं? ये तो जोड़ीदार तो हाँ भाई, तो ये इस तरीके से डांस, मतलब सारा एक मोमेंट जो है ना बच्चों को याद है। तो किस तरीके से विराट कोहली जब आए, सबसे बड़ी चीज थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। सर ये उनकी वैसे भी टाइम हो चुका था, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, उन्होंने पहले मन बना लिया था उन्होंने कि हम ये वर्ल्ड मूवमेंट नहीं हो सकता था। नहीं सर बहुत अच्छा मूवमेंट है, जब एक इंडिया को कप दिला के इन्होंने संन्यास लिया है T20 वर्ल्ड कप से, तो ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है, खुशी के पल है, और ये खुशी के पल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, भावनाएं हैं हिंदुस्तान की जो हर शख्स में मौजूद है, बच्चे से लेके बड़े तक, और सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 17 साल बाद अगर कप आया है तो खुशियां आई हैं। Oh, well, yeah, absolutely. India chants are right now echoing across the nation from Jaipur to Delhi and from north to south, east to west. We will come back with all the voices of the young and budding fans as well as the old people cheering for Team India. For now, thank you to both of you for joining us live from the ground. And viewers, now in an electrifying win, India has taken back home the T20 World Cup. Like you know, fans across the globe are in awe, and among team's brilliant performers, one player shone the brightest, Jasprit Bumrah.